Hello everyone, welcome to Crystal International Public School. This is Standard Ninth subject Social Science, and today we will revise chapter number 19, India Human Life. Okay, so in revision we will revise the question answers, so any doubt or queries are there, all queries will be solved. Okay, so the first question, that is, what diversities are seen among the people of India? Means which type of diversities we are seeing among the people of India. So diversities are seen in food, as I explained that a variety of foods are there. Different people eat different types of food, and in that also variation is there. Some specialities are there of some of the places. So diversities are seen in food. Second one, that is dressing also we discussed that some places they wear sari, women wear sari, some places they wear dress, and some places they wear western clothes. Even men also, some places dhoti and parent, some places jeans, some places are there they are wearing kurta pajama. Okay, so in dressing also. Then dwellings means living places, houses are different. Language, that is also different. Dialects are different. Festivals, diversities are seen in food, dressing, dwellings, language, dialects, and festival. Language, that is whatever we speak and we write and learn, that is language. And dialects जो बोली जाती है, बोलने वाली जो भाषा है, जो बोला जाता है, दैट इज डायलेक्ट्स. एंड festivals are also different, though we celebrate all the festivals, but then too festivals are different. Okay, second question, that is, to which family do the languages of South India belong? So in this question you will not write that Dravid family, we will write the whole answer. The language spoken in South India belong to Dravidian family of language. After that we will write which are the languages. I told you, in short we will write TTKM, Tamil, Telugu, Kannada and Malayalam. So here also you will mention the languages also. So Kannada language is spoken in Karnataka. Other languages spoken are Telugu in Andhra Pradesh and Telangana, Tamil in Tamil Nadu, and Malayalam in Kerala. Here also you can see Kannada, Telugu, Tamil and Malayalam. Same four languages are there which belong from the Dravid family. Okay, question number 3, it's very short. That is, state the major language and dialects of Bihar. बिहार के मेजर लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स के बारे में लिखना है. सो बिहार में मेनली हिंदी बोली जाती है. हिंदी स्पोकन इन बिहार, बट हिंदी के साथ साथ मैथिली, भोजपुरी, मगधी, these are the other dialects spoken in Bihar. Now the second question, write a short note. In that the first question, that is, dresses of men and women in Bengal and in eastern state. ईस्टर्न स्टेट्स जो है, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, वो स्टेट्स जो है, झारखंड है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मणिपुर है, नागालैंड, सिक्किम है. सो वो जो प्लेसेस है एंड बंगाल, उनके मैन एंड वुमेन के ड्रेसेस के बारे में लिखना है. सो ईस्टर्न इंडिया, फर्स्टली वी विल राइट विच स्टेट्स आर देयर इन ईस्टर्न इंडिया. सो ईस्टर्न इंडिया इंक्लूड्स स्टेट्स लाइक बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, मेघालय. सो दीज आर द नेम्स ऑफ स्टेट्स. एक आध नेम छूट जाता है, बट देन टू यू हैव टू राइट द नेम्स. ओके, देन बिकॉज इट इज़ शॉर्ट नोट, सो उसमें नेम्स लिखना कंपल्सरी है. देर इज़ नॉट मच डिफरेंस इन अटायर ऑफ पीपल इन झारखंड, आसाम एंड उड़ीसा. झारखंड, आसाम एंड उड़ीसा के पीपल का जो अटायर ड्रेसिंग है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. मैन इन बंगाल दे वियर धोती, झब्बो, खेस ऑन शोल्डर एंड हेड गियर. बंगाल के जो मैन है, बंगाली क्लोथ्स आपको पता ही है कि वो धोती पहनते हैं, उसके ऊपर झब्बा पहनते हैं. देन शोल्डर पर वो एक कपड़ा रहता है जिसे खेस कहते हैं, और सर पर पगड़ी रहती है.
वाइल वुमन वियर साड़ी पेटीकोट विथ ब्लाउज। मोस्टली वुमन का जो अटायर है उसमें यही होगा, इधर ड्रेस और साड़ी। ओके, देन सेकेंड क्वेश्चन और सेकेंड शॉर्ट नोट, दैट इज फेस्टिवल्स एंड हॉलीडेज ऑफ वेस्टर्न इंडिया। फेस्टिवल्स एंड हॉलीडेज वेस्टर्न इंडिया के राइट करने हैं। मेजर स्टेट्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया आर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड गोवा। Here only major states names are given. So major state of western India are Rajasthan, then Gujarat, then Maharashtra, Madhya Pradesh and Goa. It also includes here with state union territories of Daman and Diu, Dadra and Nagar Haveli also. So these are union territories and state of western India. People of Western India, they celebrate Diwali, Navratri, Shivratri, Dashera, Ganesh Chaturthi, Eid, Christmas, Mahavir Jayanti, Pateti, चेटी चांद, बुद्धा जयंती एक्सेट्रा। इसके अलावा के भी फेस्टिवल्स हैं, बट ये जो मेनली सेलिब्रेट किए जाते हैं सिर्फ उसी के नेम दिए हैं। सो मोस्टली सारे फेस्टिवल्स के नेम याद रह जाए, ऐसे ही है दिवाली, नवरात्रि, शिवरात्रि, दशहरा, गणेश चतुर्थी, ईद, क्रिसमस, महावीर जयंती, पतेती, चेटी चांद, बुद्धा जयंती। ओके, इन वेस्टर्न इंडियन पर्टिकुलरली इन राजस्थान, वेस्टर्न इंडिया जो है उसमें भी पर्टिकुलरली राजस्थान जो है वहाँ पर घूमर, कच्ची घोड़ी एंड कलबेलिया, दीज आर द डांस फॉर्म विच परफॉर्म्ड ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन। घूमर, कच्ची घोड़ी एंड कलबेलिया ये डांस फॉर्म है, उसमें घूमर तो आप लोगों ने देखा ही होगा। ओके, होली एंड गणगौर ये दोनों फेस्टिवल्स जो है वो राजस्थान में विथ अ ग्रेट पॉम्प सेलिब्रेट किए जाते हैं। दो एवरीवेयर इन इंडिया होली सेलिब्रेट की ही जाती है, बट राजस्थानी पीपल के मेन फेस्टिवल होली एंड गणगौर है। नवरात्रि, रास गरबा ऑफ गुजरात आर फेमस इन वर्ल्ड। गुजरात की ये जो नवरात्रि के रास गरबा है, दांडिया रास हो या गरबा हो, बट वो वर्ल्ड फेमस है। गणेश चतुर्थी इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी आपको पता है, ये लाल बागचा राजा ऐसा कहा जाता है गणेश जी को। लोग वहाँ पर जगह जगह से दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी, मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिवरात्रि, ये दोनों ही फेस्टिवल्स बहुत ही ग्रेट पॉम्प मीन्स के बहुत ही ग्रेटली सेलिब्रेट किए जाते हैं, हाई स्केल पर सेलिब्रेट किए जाते हैं। दो गणेश चतुर्थी हमारे गुजरात में भी, स्पेशली अहमदाबाद में भी सेलिब्रेट होते हैं। लोग बहुत बड़े बड़े गणेश जी को बिठाते हैं, उनकी वर्शिप करते हैं, बट जितना उसे बॉम्बे में सेलिब्रेट किया जाता है महाराष्ट्र में, उतना कहीं नहीं होता है। द सेम वे शिवरात्रि ऑल्सो, हमारे लिए शिवरात्रि का मतलब यही है कि उस दिन उपवास रखना है, उस दिन वो पोटैटो, स्वीट पोटैटो खाना है और शिव जी की पूजा करनी है। बट उज्जैन में कभी जाकर सेलिब्रेट करो, आपको पता चलेगा कि रियल शिवरात्रि कैसे सेलिब्रेट होती है। महाराष्ट्र का फेमस डांस फॉर्म है लावनी। सो दिस वाज अबाउट द फेस्टिवल्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया। इंडिया सेक्युलर कंट्री है एंड ऑल रिलीजियस फेस्टिवल्स जो है वो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सेलिब्रेट होते हैं। देन MCQs आर गिवन। सो फर्स्ट MCQ, पीपल एक्सपीरियंसिस हाउ मच टेम्परेचर पुट ऑन कॉटन ड्रेसेस विथ लाइट कलर। जो पीपल कॉटन ड्रेस पहनते हैं लाइट कलर वाले, वहाँ का टेम्परेचर कितना होता है। सो कॉटन वही लोग पहनते हैं जहाँ पर टेम्परेचर हाई हो, टेम्परेचर एक्सट्रीम हो, मतलब गर्मी ज़्यादा हो ऐसे एरियाज में। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, एक्सट्रीम। ओके, सेकेंड MCQ इज पीपल ऑफ विच स्टेट पुट ऑन शूज़ फ्रॉम कैमल्स लेदर। अब ये तो हमें पता ही है, हम बिना पढ़े भी बोल सकते कि कैमल जो है उसे शीप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है।
तो डेफिनेटली डेजर्ट एरिया के पीपल ही उसके लेदर से बने शूज़ पहनते होंगे, और डेजर्ट एरिया तो राजस्थान ही है, गुजरात में है बट उतना उसका वो नहीं है जितना राजस्थान में है। सो राजस्थान तो पूरा का पूरा डेजर्ट एरिया है। सो द करेक्ट आंसर इज राजस्थान। देन विच लैंग्वेज इज स्पोकन इन गोवा? सो द लैंग्वेज ऑफ गोवा इज कोंकणी। नेक्स्ट इज पीपल ऑफ विच स्टेट ईट अ वेराइटी ऑफ परोठास? वेराइटी ऑफ परोठास, आलू के पराठे, मूली के पराठे, गोभी के पराठे, प्याज के पराठे, पनीर के पराठे, ये सब पराठा जो है वो कौन से स्टेट के लोग खाते हैं? दैट इज़ पंजाब। आपको पता ही है, आपने मूवीज़ में टीवीज़ में देखा होगा, इवन आपके आजू बाजू में कोई पंजाबी, उनके घर पर कुछ भी चीज़ अंदर डाल के उसके पराठे वो बनाना का टेक्निक उनके पास है, और पराठे के ऊपर लॉट्स ऑफ बटर। That is the speciality of Punjabi people. Okay, now the next one, that is where is the Merg Fair held? Merg Fair कहाँ पर होता है? So it is in Allahabad. The next question, that is of which state is Pongal a main festival? Pongal कहाँ का main festival है? So it is Tamil Nadu. And the last MCQ, that is which type of relief? रिलीफ मतलब फिजिकल फीचर के बारे में बात हो रही हो कि फिजिकल फीचर के बारे में कि सीन उन उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में फिजिकल फीचर कैसा है? सो दैट इज़ माउंटेनियस। उत्तराखंड जो है दैट इज़ इन हिमालयस, उत्तराखंड हिमालय माउंटेन रेंज में है, और इसीलिए वहाँ का जो रिलीफ फीचर है या जो रिलीफ है दैट इज़ माउंटेनियस है। ओके, सो MCQs over. Now another question answers are there. So in that the first question, that is name the major state of western India. सिर्फ स्टेट के नेम लिखने हैं। सो अभी अभी हमने वेस्टर्न इंडिया के जो फेस्टिवल्स है उसके बारे में स्टडी किया, तो उसमें हमने स्टेट्स के नेम पढ़े ही थे, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड गोवा। ये सारे ही 5 स्टेट्स आर देयर, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड गोवा। दिस 5 आर द मेजर स्टेट्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया। और उसके अलावा यूनियन टेरिटरीज भी हमने स्टडी किए, दैट वर दमन, दीव, दमन, दीव, नागर एंड हवेली एंड दादरा एंड नागर हवेली बोला जाता है। सो दीज आर द नेम ऑफ द यूनियन टेरिटरीज ऑफ वेस्टर्न इंडिया। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज गिव अ ब्रीफ आइडिया अबाउट द स्टेपल फूड ऑफ पीपल ऑफ वेस्टर्न इंडिया। अब उनके जो स्टेट्स है उनके नेम तो हमने लिख लिया, अब उनका जो स्टेपल फूड है उसके बारे में लिखना है, तो उसमें स्टेट वाइज वी विल राइट, बिकॉज स्टेट वाइज सबके फूड डाइट स्टेपल फूड अलग अलग है। सो राजस्थान सबसे पहले, इन राजस्थान मिलेट एंड दाल बाटी आर द स्टेपल फूड ऑफ राजस्थान। वो लोग मिलेट एंड दाल बाटी सबसे ज़्यादा खाते हैं। राजस्थानी के घर पर आप देखो दाल बाटी फ्रिक्वेंटली बनती ही रहती है। देन मारवाड़ी कचौरी ऑफ राजस्थान इज़ अ कॉमन स्नैक। स्नैक्स में अगर वो कुछ खाते हैं तो वो कॉमन है, मारवाड़ी कचौरी फेमस है वो। ओके, देन गुजरात में चपाती या तो फिर भाखरी, वेजिटेबल्स, दाल, राइस, खिचड़ी एंड कढ़ी, ये स्टेपल डाइट है गुजरात का। चपाती मीन्स रोटली या तो भाखरी, वेजिटेबल्स, दाल, राइस, अगर दाल राइस नहीं तो कढ़ी खिचड़ी होगा, लेकिन सब्जी रोटी या सब्जी भाखरी के साथ में कढ़ी खिचड़ी या दाल राइस, ये उनका स्टेपल डाइट है। देन स्नैक्स जो है उसमें पीपल ईट खमन, पात्रा एंड गांठिया एज सेवरी डिशेस। अगर कोई घर पर मेहमान भी आता है तो उन्हें सर्व भी यही किया जाता है। पीपल प्रीफर स्नैक्स लाइक थेपला। पीपल जो है वो सेवरी डिशेस के साथ जो स्नैक्स है, अगर कहीं जाना है तो उनके बैग में आपको कपड़े मिले ना मिले और कुछ मिले ना मिले, वो अगर किसी कोल्ड प्लेस पर घूमने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर जाने से पहले वो ठंडी के कपड़े स्वेटर लेना भूल सकते, लेकिन ये नाश्ता लेना नहीं भूल सकते, और वो है थेपला, गांठिया, ड्राई कचौरी, खाखरा एंड सुखड़ी। इवन ये ब्रेकफास्ट में भी होता है,
उनके खाने में भी ऐसी ही आइटम्स होती ही है। पीपल ऑफ गुजरात वाइडली यूज़ ग्राउंडनट ऑयल। पीपल, गुजरात के जो पीपल है वो ग्राउंडनट ऑयल का ज़्यादा यूज़ करते हैं। देन महाराष्ट्र, सो महाराष्ट्र में जो स्टेपल डाइट है दैट इज़ भाखरी, साबूदाना खिचड़ी, वेजिटेबल्स, देन आमटी दैट इज़ लेंटिल्स, ये उनका स्टेपल डाइट है। महाराष्ट्रियन जो है उनका जो स्नैक्स है वो है पूरन पोली, श्रीखंड, मिसल पाव। ओके, इवन महाराष्ट्र का वड़ा पाव भी फेमस है। देन द लास्ट वन दैट इज़ कोस्टल एरिया, जो सी बीच पर एरियाज है उन लोगों का स्टेपल डाइट राइस एंड फिश है। जो गुजरात हो, महाराष्ट्र हो या गोवा, लेकिन कोस्टल एरियाज में रहने वाले पीपल का स्टेपल डाइट है राइस एंड फिश। देन द थर्ड क्वेश्चन दैट इज़ वाई डू पीपल ऑफ गुजरात फेवर ड्राई स्नैक्स। गुजरात के जो पीपल है वो ड्राई स्नैक्स को इतना क्यों वो करते हैं, या ड्राई स्नैक्स क्यों ज़्यादा खाते हैं, प्रीफर क्यों करते। तो सिंस एंशियंट टाइम द पीपल ऑफ गुजरात हैव रिमेन ट्रेडर्स। एंशियंट टाइम से गुजरात के जो पीपल है वो ट्रेडर्स रहे, और ट्रेडर्स मतलब कैसे, वन प्लेस टू अनदर प्लेस वो माइग्रेट होते रहते हैं। फार प्लेसेस पर दे यूज टू ट्रैवल, दूर दूर के प्लेसेस पर वो अपने बिजनेस पर्पज से ट्रैवल करते रहते हैं। एज ए रिजल्ट दे कीप होम मेड ड्राई स्नैक्स विद देम दैट कैन नॉट पेरिश फॉर लॉन्ग टाइम। और इसीलिए वो अपने साथ ड्राई स्नैक्स जो है वो रखते हैं जो होम मेड होता है और जो लॉन्ग टाइम तक चलता है। दैट कैन नॉट पेरिश, जो जल्दी सड़ता नहीं है, लॉन्ग टाइम तक चलता है, ऐसा ड्राई स्नैक्स वो अपने साथ रखते हैं। थेपला, चवाणा, गांठिया, ड्राई कचौरी, खाखरा, सुखड़ी, सेव ममरा, ये सारे ऐसे स्नैक्स हैं कि जो जब भी ट्रैवल करते तो अपने साथ ये सारी चीज़ें वो रखते हैं। और उसके पीछे का रीज़न यही है कि वो ट्रैवल करते हैं, उनको प्लेस टू प्लेस ट्रैवल करना पड़ता है, और ऐसे टाइम पर उनके पास वो बाहर का कितना खाएंगे और बार बार तो ले नहीं सकते। अब ट्रैवलिंग के टाइम पर भूख भी उतनी ही लगती है, तो इसीलिए वो ये सारी चीज़ें अपने साथ एज अ स्नैक्स रखते हैं कि जब भी भूख लगे बाहर का खाने से बेटर है कि होम मेड थिंग्स खाई जाए। एंड इट इज़ गुड, इंस्टेड ऑफ ईटिंग अनहेल्दी फूड फ्रॉम द आउटसाइड, इट इज़ गुड टू कीप दीज थिंग्स विथ अस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज गिव अ ब्रीफ आइडिया अबाउट द क्लोथिंग ऑफ पीपल ऑफ वेस्टर्न इंडिया। पहले स्टेट्स, देन उनका डाइट, देन गुजराती पीपल जो है वो अपने साथ स्नैक्स क्यों रखते हैं, एंड देन जो वेस्टर्न इंडिया के जो पीपल है उनके क्लोथिंग। तो उसमें भी सबसे पहले है राजस्थान। राजस्थान जो है वो ड्राई एंड डेजर्ट एरिया है, सो दैट इज़ वाई, दैट इज़ द रीज़न कि वहाँ पर वेजिटेशन में लेस डाइवर्सिटी है, बिकॉज डेजर्ट एरिया की वजह से वहाँ पर उतना ग्रीनरी नहीं है और इसीलिए वेजिटेशन में डाइवर्सिटी उतनी नहीं है। राजस्थानी सोर्स इज डेजर्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स इन इट्स क्लोथिंग विच आर कलरफुल एंड वाइब्रेंट ड्रेसिंग। राजस्थानी पीपल जो है वो ये जो कमी है वेजिटेशन के अंदर, जो वैरायटी की कमी है, मतलब कि लेस वेरिएशन है, लेस डाइवर्सिटी है, वो उसे पूरी करते हैं अपने क्लोथ्स में। कैसे? सो राजस्थानी पीपल जो है वो कलरफुल एंड वाइब्रेंट ड्रेसिंग उनका होता है। आपने राजस्थानी पीपल का ड्रेसिंग देखा ही होगा। मैन जो है वो जनरली धोती पहनते हैं, ऊपर अंगरखा होता है जो शर्ट भी नहीं होता है एंड कुर्ता भी नहीं होता है, शर्ट भी नहीं और कुर्ता भी नहीं, ऐसा अंगरखा होता है। एंड कलरफुल पगड़ी उनकी होती है। उनकी पगड़ी आप देखो, जो गर्ल्स बांधनी का दुपट्टा समझती है ना, ऐसी कलरफुल उनकी पगड़ी होती है। एंड वुमन जो है वो ब्यूटीफुल साड़ी पेटीकोट विद ब्लाउज पहनते हैं। उनका जो साड़ी होती है वो भी डिफरेंट होती है, इट्स लाइक ओढ़नी। एंड उनका जो पेटीकोट होता है वो बहुत ही कलरफुल एंड प्लेटेड होता है, एंड समटाइम्स तो इतना ब्यूटीफुल होता है कि पीपल जो है उससे अट्रैक्ट भी होते हैं। नाउ द गुजरात। सो ट्रेडिशनली गुजरात के जो मैन है, अभी का जो कॉस्ट्यूम है दैट इज़ डिफरेंट,
बट अर्लियर गुजराती पीपल दे वियर धोती कुर्ता एंड वाइट कैप और टर्बन। गुजराती पीपल जो है, आपने पहले की अगर गुजराती मूवी देखी होगी तो पता होगा, वो धोती कुर्ता पहनते थे और वाइट कैप होती थी या तो फिर पगड़ी होती थी। वेल वुमन जो है वो सारी पेटीकोट विथ ब्लाउज। देन नेक्स्ट स्टेट दैट इज़ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जो ड्रेस है उसमें महाराष्ट्रियन मैन जो है वो धोती पहरन एंड कैप पहनते हैं। महाराष्ट्रियन पीपल की कैप आपने देखी होगी, वो नेता लोग पहनते हैं, पॉलिटिशियन, उस टाइप की कुछ कैप उनकी होती है। वुमन जो है वो महाराष्ट्रियन स्टाइल की साड़ी पहनते हैं। आपने लावणी डांस देखा ही होगा, उसमें आपने देखा होगा जो साड़ी है वो महाराष्ट्रियन साड़ी है, तो उस स्टाइल की साड़ी वो पहनते हैं। देन नेक्स्ट वन दैट इज़ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का जो ड्रेस है वो महाराष्ट्र एंड गुजरात से सिमिलर है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एंड द लास्ट वन दैट इज़ गोवा। ट्रेडिशनली गोवान्स मतलब गोवा के जो पीपल है दे वियर धोती एंड पहरन एंड वुमन जो वो सारी पेटीकोट ब्लाउज पहनते हैं। हाउ एवर राइट नाउ एट प्रेजेंट गोवा जो है उनके कॉस्ट्यूम वेस्टर्न कंट्रीज से हाईली इन्फ्लुएंस है, तो उसकी वजह से वहाँ के जो पीपल है वो वेस्टर्न क्लोथ ज़्यादा पहनते हैं। नॉट ओनली गोवा, हमारे यहाँ पर भी आप देख लो कि हार्डली अब कोई साड़ी में देखने को मिलता है। जो एजेड हैं या जो मम्मीज़ है, जो दादीज़ है, वो साड़ी पहनते हैं, बाकी तो सब लोग ड्रेसेस या वेस्टर्न कपड़े ही ज़्यादा पहनते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ड्वेलिंग ऑफ वेस्टर्न इंडिया। अब वेस्टर्न इंडिया के ड्वेलिंग्स मतलब जो हाउसेस है उसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखने। उसमें सबसे पहले है राजस्थान। सो मोस्ट ऑफ द राजस्थान इज़ डेजर्ट रीजन एंड यहाँ पर लेस रेनफॉल होता है, सो दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द हाउसेस जो है उनके रूफ छत जो होती है वो फ्लैट होती है, बिकॉज रेनफॉल ज़्यादा नहीं होता है। एंड रूरल पीपल जो है, विलेज पीपल, वो ग्रास एंड सॉइल से बने हुए कच्चे मकान में रहते हैं। विलेज में उतने पक्के मकान देखने को नहीं मिलते हैं, दो अभी डेवलपमेंट की वजह से कच्चे मकान बहुत कम है, बट देन टू जो विलेज पीपल है वो कच्चे मकान में रहते हैं। वाइल अर्बन एरियाज़ जो है राजस्थान के, जो सिटी एरियाज या टाउन एरियाज है, तो वहाँ पर जो रूफ है वो फ्लैट होते हैं। दैन नेक्स्ट दैट इज़ गुजरात। गुजरात के जो पीपल है वो मॉडर्न टाइप के हाउसेस में रहते हैं। उनकी जो हाउसेस एंड बिल्डिंग्स है वो ब्रिक्स एंड सीमेंट से बने हुए थे। देन कच्छ के जो ड्वेलिंग्स हैं वो कुछ अलग ही प्रकार के ड्वेलिंग होते हैं और इसीलिए उसे भूंगा कहा जाता है। ओके, देन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड गोवा, या तीनों का सिमिलर है। अर्बन पीपल जो है मतलब सिटी एरियाज़ के जो पीपल है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड गोवा के, तो वो सब भी मॉडर्न स्टाइल के हाउसेस जो है जहाँ पर मॉडर्न एम्यूनिटीज़ फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, प्रोवाइडेड है, ऐसे हाउसेस में रहते हैं। रूफ्स ऑफ द बिल्डिंग्स इन कोंकण रीजन विच रिसीव्स हैवी रेनफॉल आर स्लैंट। कोंकण रीजन के जो रूफ्स है वो स्लेंटी होते हैं। स्लेंटी मतलब तिरछे जिसे कहते हैं, जिसकी वजह से जैसे ही रेनफॉल हो पानी ऊपर जमा ना हो, वो डायरेक्टली नीचे फ्लो हो जाए। ओके, और स्लोपी जिसे हम कहते हैं वैसे ही स्लेंटी। इन एवरी स्टेट द फॉरेस्ट ड्वेलर्स लिविंग इन फॉरेस्ट और माउंटेनस एरिया स्टे इन स्कैटर्ड हट्स। एवरी स्टेट में जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग जो है या जो माउंटेन में रहने वाले लोग हैं वो स्कैटर्ड हट्स में रहते हैं, कि अगर जो ड्राई ग्रास एंड उससे बनी हुई हट जो होती है उसमें वो लोग रहते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज स्टेट द डिफरेंट लैंग्वेज इज स्पोकन इन द वेरियस पार्ट ऑफ द वेस्टर्न इंडिया। टोटली वी आर स्टडिंग वेस्टर्न इंडिया। ओके, सबसे पहले तो हमने स्टेट्स, देन वहाँ के जो फेस्टिवल्स प्रीवियसली पढ़ चुके, देन उनके ड्वेलिंग्स के बारे में पढ़ चुके, उनके क्लोथ्स के बारे में, उनकी फूड के बारे में। ओके, नाउ उनके जो लैंग्वेज है वो, सो रीजन एंड लैंग्वेज स्पोकन टेबल दिया हुआ है। सो राजस्थान में मारवाड़ी लैंग्वेज बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है। गुजरात में जो कच्छ रीजन है वहाँ पर कच्छी बोली जाती है, जो गुजराती से थोड़ी अलग है।
मध्य प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, वाइल महाराष्ट्र में मराठी एंड गोवा में कोंकणी बोली जाती है। उसके अलावा ओवर एंड अबव दिस पीपल जो सेवरल रीजन से बिलोंग करते हैं उनके खुद के अलग डायलेक्ट्स है। लाइक गुजरात के अंदर ही आप देख लो कि महसाणा का गुजराती अलग है, कच्छ का गुजराती अलग है, सूरत का गुजराती अलग है, काठियावाड़ का गुजराती अलग है। ओके, सौराष्ट्र गुजराती अलग। सो हर जगह पर गुजराती में भी वेरिएशन मिलता है, वैसे हिंदी में भी ऐसा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज वेस्टर्न इंडिया के फेयर्स जो सेलिब्रेट किए जाते हैं। सो फेयर सेलिब्रेटेड इन वेस्टर्न गुजरात। सिद्धपुर in Gujarat is known for their camel trade on Kartik Purnima full moon day. A fair is arranged at the time. कार्तिक पूर्णिमा जो है मीन्स के हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट मंथ आता है कार्तिक मंथ, उसके 15th डे पर पूर्णिमा जिसे हम कहते हैं फुल मून डे, उस दिन ये फेयर होता है। और वो फेयर है कैमल ट्रेड, जहाँ पर कैमल की ट्रेडिंग की जाती है। और ये गुजरात के सिद्धपुर में होता है, सिद्धपुर पाटण जो कहा जाता है। ओके, अ फेयर इज कंडक्टेड फॉर ट्रेडिंग डोंकीज एट वौठा ऑफ धोलका तालुका इन गुजरात। गुजरात का जो धोलका तालुका है वहाँ पर वौठा नाम के प्लेस पर फेयर होता है, जिसे वौठा फेयर कहा जाता है। वो होता है फॉर द ट्रेडिंग ऑफ डोंकीज। जैसे ऊपर कैमल ट्रेड होता है वैसे यहाँ पर डोंकी ट्रेडिंग होता है। अदर फेमस फेयर्स जो है गुजरात के आर तरनेतर फेयर जो थानगढ़ में होता है, देन भवनाथ फेयर जो जूनागढ़ में होता है, एंड डांग में डांग दरबार फेयर होता है। सबसे पहला सिद्धपुर का कैमल फेयर, देन डोंकी फेयर कहाँ पर होता है? डोंकी फेयर जो है वो धौलका में वौठा में होता है। देन तरनेतर फेयर जो है वो थानगढ़ में होता है, भवनाथ फेयर जूनागढ़ में, एंड डांग दरबार फेयर जो है वो डांग में। देन गुजराती कैलेंडर के अकॉर्डिंग ऐसा होता है कि आफ्टर एवरी 18 ईयर्स भादरवा मंथ जो है वो ऑकर होता है, विच इज़ कॉल्ड अधिक मास, एडिशनल मंथ। सो उस टाइम पर फेयर ऑर्गेनाइज किया जाता है, दैट इज़ भाड़धूत फेयर, विच इज़ इन वागरा तालुका ऑफ भरूच डिस्ट्रिक्ट। भरूच डिस्ट्रिक्ट के वागरा तालुका में ये फेयर होता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज नेम द इम्पोर्टेंट स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। वेस्टर्न इंडिया कंप्लीट, नाउ नॉर्थ इंडिया और उनकी डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ना है। सो नॉर्थ इंडिया इंक्लूड्स स्टेट्स जो है वो है पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली। पंजाब जो है वो 5 रिवर की लैंड है, इसीलिए उसे पंजाब कहा जाता है, जिसमें पंज PUNJ पंज जो है वो उसका मतलब होता है 5 और AB का मतलब होता है वाटर। सो 5 वाटर, दैट मीन्स के 5 रिवर का वाटर वहाँ पर फ्लो होता है और इसीलिए उसे पंजाब कहा जाता है। ओइंग टू इट्स इमेंस ब्यूटी, जम्मू एंड कश्मीर जो है उसे कंसिडर किया जाता है टू बी द हेवन ऑन द अर्थ, अर्थ का हेवन कंसिडर किया गया है। उत्तराखंड जो है वो माउंटेनियस रीजन है एंड उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है, वहाँ पर लोग पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश वो नेचुरल ब्यूटी है एंड माउंटेनियस स्टेट है। उत्तर प्रदेश जो है वो भी फर्टाइल प्लेन जो है गंगा एंड यमुना डोब के, डोब मतलब वाटर है। सो गंगा एंड यमुना रिवर जो है उससे बने हुए फर्टाइल प्लेन जो है वो उत्तर प्रदेश में है एंड दिल्ली जो है वो इंडिया का नेशनल कैपिटल है। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। सो क्वेश्चन 8 तक हम रखते हैं, बाकी का जो है दैट वी विल revise in next video. Hope your all the doubts are cleared. Okay, thank you all.